Assalamu alaikum to all of you. Now, this is session 14. It's about designing lessons. It has a connection with the previous lecture. Designing lessons. So, if you have any queries regarding what we did, you can ask me right now. Yes, if you have any questions, you can ask me. In the previous class, we were talking about this in the end, at the end of the class, that who the students are and what they need. These are the things, these are the elements about which teacher has to think. So thinking about lessons, teachers do not plan lessons in a vacuum. Means teacher do not plan lesson. यानी टीचर जो लेसन प्लान करते हैं वो सेपरेटली नहीं करते, यानी कि कॉन्टेक्स्ट उनको लाजमी मालूम होना चाहिए. टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, they do so in the context of who they are teaching, where they are teaching, and what materials are and technology they have available, and especially what they themselves believe about the learning and teaching process. वो खुद क्या इस बारे में सोचते हैं. तो teaching context, English is taught in many different contexts and situations around the world. So an important distinction is has been made between EFL. तो ये एक रिसर्च के बाद उन्होंने जो चीज़ फाइंड आउट की उसके बारे में बता रहे हैं कि वेयर स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन मल्टीपल सेटिंग्स, and ESL where they learn English principally in order to live successfully in the in the English language environment where they are living. So our planning will vary depending on which of these situations we are working in. Either we are teaching those who are learning English as a foreign language, or we are teaching those who are learning English as a second language. मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज लोग सीखते हैं. पीपल लर्न इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. People do not learn English as a foreign language, but in China, people learn English as a foreign language. In some other countries like Arab countries, वहाँ पे भी आप इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीख रहे, लेकिन अक्सर आपको वहाँ पे भी इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे लोग सीखते हुए मिलेंगे. So it is seen that whether students are learning English as a foreign language or English as a second language. So this is what we call context, teaching context. इसी तरह से कुछ लोग आपको मिलेंगे, they are learning English for specific purposes. Are you getting me? बात क्लियर आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस चलिए मैं, सर. तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि टीचिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है. क्या अब मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जो BS सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फंक्शनल इंग्लिश या कंपल्सरी इंग्लिश, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर? आप नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग वेरी वेल. व्हाट इज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर? Sir, just this. हाँ, वो वहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट होता है? Sir, just they seem to source of earning. सोर्स ऑफ अर्निंग मीन्स सर जैसा कि वो एक कमाने का जरिया खोल के रखते थे. नहीं, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट बताए ना. टीचिंग कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका उनका गोल क्या है, व्हाट इज़ देयर एम, व्हाट इज़ देयर गोल, ऑब्जेक्टिव क्या उनका, ये है टीचिंग, ये कॉन्टेक्स्ट है. जैसे मैंने आपसे कहा कि समटाइम यू मे हैव स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश फॉर अ गुड जॉब, तो ये आपके पास टीचिंग इंस्ट्रूमेंटल गोल्स हो गए. Sometimes you'll find students who are learning English for going abroad. So you will find here that some people want to learn English as a second language, some people want to learn English as a foreign language, some people want to learn English for specific purposes. जिसमें किसी को जो बाहर जाना है, तो किसी को तालीम हासिल करनी, किसी को CSS के एग्जाम्स देने, किसी को कमीशन के एग्जाम्स देने,
ठीक है, मुख्तलिफ मकसद के लिए वो अंग्रेजी सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ESP। उसको हम क्या नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ESP। ESL होता है, ESL होता है, EFL होता है, ESP होता है। ESL मीन्स इंग्लिश फॉर इंग्लिश एज अ English as a second second language. second language। EFL means English as a foreign language। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ्रांस में, इटली में या तुर्की में कोई अंग्रेजी सीख रहा है, तो वो अंग्रेजी, या चाइना में भी इवन कोई अंग्रेजी सीख रहा है, सो दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे हमारे मुल्क की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मेनी अदर कंट्रीज, यू विल फाइंड इंग्लिश इज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इंग्लिश वी लर्न, दैट्स व्हाई इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो हमारी एफर्ट्स अलग होती हैं। एंड चाइना हो गया, तुर्की हो गया, और बहुत सारे ममालिक हैं, डेवलप कंट्री, दे आर हाईली डेवलप कंट्री, सो दे लर्न इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इंग्लिश फॉर specific purposes। Here we have different purposes for English, learning English language. Some are learning English language for a good job, some are learning language for passing different types of exams, some for learning for passing IELTS so that they can go abroad। So these are different contexts, ठीक है, जिनको आपने ध्यान में रखना होगा, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट। According to that these contexts, you have to then do your planning। Sir, Yes। what's the difference between learn as a second language or foreign language? Aren't they both same? No, they are not same. When you are learning as a second language, English as a second language, so your efforts will be different, and your goals will be different. It means that English is a second language in your country, and English is a very important language in your country from education point of view, from social point of view, from job point of view, from business point of view। Are you getting me? This is called second language। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इट मीन्स वो एक फॉरेन लैंग्वेज से बता दी कि आप अगर फ्रेंच सीखें यहाँ पर, तो वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, वो सेकंड, क्योंकि फ्रेंच हमारे यहाँ ऑफिस में इस्तेमाल नहीं की जाती, फ्रेंच हमारे यहाँ तालीम में तालीम एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं की जाती, जॉब्स में, बिजनेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसको हम सीखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वी आर लर्निंग एज अ फ्रेंच एज अ सेकंड लैंग्वेज, सॉरी फॉरेन लैंग्वेज, यानी एक बाहर की ज़बान है, यानी कि हमें वहाँ जाना होगा तो उसको इस्तेमाल करना होगा, मुल्क में इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताएं उसको आप कितनी अहमियत देंगे। अब जो बाहर जाना चाहता है, जैसे मिसाल चाइना वाले जो हैं, they are sending their products throughout the world, they are exporting $2 ट्रिलियन की उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट है, 2200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। यानी कि हम, हमारा जो पूरे साल का बजट है, उसको अगर आप 10 दफ़ा जमा कर लेंगे ना, या 9 मरतबा आप उसको, सॉरी 8 मरतबा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना जो आपके पास अमाउंट आएगा, उतने का सिर्फ वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। तो इसलिए उनको मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको ज़रूरतन अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तो उसके लिए वो कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो हमारे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। फॉर एग्जाम्पल कोई यूरोप में जा रहा है, तो उसे स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है। कोई कहीं और इटली में जा रहा है, तो उसे वहाँ पे कुछ और सीखनी पड़ रही है, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अरेबिक लैंग्वेज होगी। तो ये लैंग्वेज हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, ना ही ऑफिशियली, ना ही एजुकेशन में। तो ये हम सीखेंगे तो हम इसको हम कहेंगे फॉरेन लैंग्वेज। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. तो इसको हम कहेंगे फॉरेन लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश को इस मकसद के लिए सीखता है, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। और जो इंग्लिश को सीखता है इस मकसद के लिए कि इंग्लिश इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, एंड समटाइम मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वन, एंड इट इज़ यूज इन आवर एजुकेशन, आवर जॉब, बिजनेस, एवरीवेयर, इन आवर ऑफिसेज। सो देन दे लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो उसकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है। फिर उसके
उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है, फिर उस लिहाज से प्लानिंग की जाती है। और फिर तीसरी कैटेगरी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, तो ये आपके पास वही है कि जिसका जो मकसद है उस लिहाज से वो सीखना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर किसी को आइल्स पास करना है, बाहर जाना है, अब आइल्स पास नहीं हो रहा तो उसके लिए अंग्रेजी सीख रहा है। किसी को अंग्रेजी सीखना है CSS के एग्जाम्स को पास करने के लिए, उसके लिए वो सीख रहा है। किसी को अच्छी नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखना है तो वो उसके लिए सीख रहा है। तो वो इसके they have some goals and these goals are called instrumental goals। उनके कुछ instrumental goals हैं जिनको अचीव करने के लिए वो अंग्रेजी ज़बान सीख रहे हैं। So these are different actually context। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। मैं आपको अगर कोई एक्टिविटी देता हूँ और आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दैट कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट एक्टिविटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, कोई से भी स्किल हो, आपने उसको तैयार करके देना होगा। फिर आपने उसको बाकायदा डिफेंड भी करना होगा कि मैंने ऐसे तैयार किया, ऐसे किया। ऐसा ना हो कि आपने तैयार करके जमा करा दिया, जैसे माजी में होता रहा है, स्टूडेंट करते रहे, और बस आपने बाकायदा डिफेंड भी करना होगा, सर मैंने इसको इस तरह से तैयार किया और इसकी ये वजूहत थी, मैंने तभी ये किया, वो क्या, जो भी आप बताएंगे, ठीक है। सो क्लियरली आवर प्लानिंग विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ दीज सिचुएशंस वी आर वर्किंग इन। किस सिचुएशन में हम बात काम करें तो हमारी प्लानिंग उस लिहाज से तब्दील होगी। वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट प्लानिंग वेरी डिफरेंटली, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। We will also think about our planning very differently depending on whether we teach general English or English for specific purposes। General English तो normally जो आपके पास है, कंपलसरी इंग्लिश आप पढ़े ना, जनरल इंग्लिश है। फिर स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है, मिसाल अगर कोई बिजनेस मैन अंग्रेजी सीखने आ रहा तो हमें उसको बिजनेस के से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज देनी होंगी। आर यू गेटिंग मी? अगर कोई हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई आलिम दीन या कोई जो है हमारे मदारिस के स्टूडेंट्स आते हैं तो हमें उस लिहाज से उनको एक्टिविटीज़ देनी होंगी। फिर उनको आपने थोड़ा उस पर थोड़ा केयर करना होगा। टारगेट देखना है उनका क्या है। इफ़ समबडी इज कमिंग टू लर्न इंग्लिश एंड हिज टारगेट इज समथिंग डिफरेंट, जनरल इंग्लिश तो सबके लिए है, जनरल इंग्लिश इज फॉर ऑल, जैसे आपने इंग्लिश कंपलसरी पढ़ी सबके लिए एक ही है। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात आएगी तो उसमें वो टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, BBA में जाके पढ़ाएंगे तो हमारी अप्रोच अलग होती है, वहाँ अलग होता है। कॉमर्स में जाके पढ़ाते हैं तो हमारी अप्रोच और अलग होती है, क्योंकि वहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग है। इस तरह से अगर हम जब ह्यूमैनिटीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं, आर्ट्स अप्रोच इज डिफरेंट। Here we have to keep in mind that our students will also study other subjects, so we have to teach them from different point of view। ये टीचिंग कॉन्टेक्स्ट को लाजमी देखिएगा। फिर सिलेबस एंड करिकुलम। A syllabus is the list of language or other content that will be taught on a course। ये होता है सिलेबस। It is different from a curriculum। curriculum से different होता है, which expresses an overall plan for a school or subject with its philosophy and how evaluation will take place। तो ये curriculum जो अलग होता है, जबकि syllabus उसी के अंदर से निकाला जाता है। curriculum हो सकता है बहुत बड़ा ओवरऑल प्लानिंग प्लान हो, जबकि आपने सिलेबस उसी के अंदर से निकालना होता है। So many teachers may have different syllabus types, different syllabus। जैसे यहाँ पे आपके पास है एक फंक्शनल सिलेबस। अब ये फंक्शनल सिलेबस क्या होता है, कभी सुना है नाम इसका? यस? नो सर। नहीं, कभी नहीं सुना? फंक्शनल तो सुना होगा ना नाम? ये सही है। फंक्शनल का नाम तो आप यस लोगों सर, ने सुना होगा। फंक्शन। क्या होता है? करिए भैया। What is called functional? Just try your best। सर वर्केबल और एक्टिव। Functional is which has practical implementation। functional syllabus list languages। जैसे मिसाल पे अगर कोई functional उस पर जाके पढ़ा रहा है, मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कर दिया, कोई अगर functional पे जाके पढ़ा रहा है तो क्या होगा, ये देखिए। Functional syllabuses list language functions such as apologizing, inviting, etc. And situational syllabuses are based around events such as at the bank, at the bank, at the travel agent, at the supermarket, etc।
So there has been top two of lexical syllabus and syllabuses based on list of tasks in task based learning. तो ये मुख्तलिफ तरह के सिलेबसेस हैं। फंक्शनल में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट सिखाएंगे कि हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू मेक अपॉलॉजीज, हाउ टू मीट ईच अदर व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम, व्हाट टू से एंड हाउ टू मीट ईच अदर, हाउ टू मीट ईच अदर सेकंड टाइम। आर यू गेटिंग मी? ये चीज़ें आपके पास फंक्शनल, यानी कि जो भी चीज़ होगी वो फंक्शनल होगी, उसको करके दिखाएंगे और आपको करना होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। सिचुएशनल में फिर आपको क्या बताएंगे, सिचुएशनल सिलेबसेस में आपके पास क्या होगा, दिस थिंग विल बी बेस्ड ऑन इवेंट्स सच एज एट द बैंक। आपको एक सिचुएशन दे दी गई कि भाई आप इस सिचुएशन में हैं, यू आर going to you go to a bank, or you are in at a bank and you want to get information, you want to get to have your account, you want to get your account, or you want to refresh your account. Now just you have, there's a you are sitting and the next person is a banker, you have to talk about this thing। तो एक सिचुएशन दे दी है, ट्रेवल एजेंट का दे दिया सिचुएशन, एट द सुपर मार्केट आपको एक सिचुएशन दे दी, तो ये आपके पास सिचुएशनल सिलेबस में आपके पास आएगा। फिर आपके पास और भी चीज़ सिलेबस लेक्सिकल सिलेबस होता है, तो ये देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इज दिस क्लियर? फंक्शनल। Yes, sir. अब आपसे अगर कहा जाएगा कि यू हैव टू टीच, you have to make a functional, for example design a functional syllabus, so what will you do? क्या करेंगे आप उसमें? आप ये नहीं डिज़ाइन करेंगे कि आर्टिकल लिख दिया आपने, या प्रीपोजिशन लिख दिया, या आपने उसमें प्रेजेंट टेंस लिख दिया कि ये चीज़ें पढ़ानी होंगी, फिर उसमें आपने फंक्शनल चीज़ों पर जाना होगा। फंक्शनल विच आर रिलेटेड टू आर यू नो फंक्शंस, व्हाट वी डू इन एवरीडे लाइफ। जैसे हम एवरीडे लाइफ में किसी को इनवाइट करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और कहीं जाते हैं तो हम किसी से किस हवाले से बात करते हैं। दीज ऑल आर फंक्शंस। देन सिचुएशन में आपके पास सिचुएशंस बीच में आ जाएंगी। Excuse me, sir. यस। Then what is the difference between functional and situational? Both are seems to be same. सिचुएशनल मीन्स फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाएंगे ना, तो ये आपकी सिचुएशन है। वहाँ जाकर अगर आप उससे दरख्वास्त करेंगे तो वो आपके पास फंक्शनल में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट बगैर गए सिचुएशन के बगैर तो दरख्वास्त नहीं करेंगे ना आप। पहले आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने वहाँ पे फंक्शन को करना है। इफ़ आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट मीट द बैंकर, हाउ विल आई रिक्वेस्ट हिम टू रिफ्रेश माई अकाउंट और टू रीएक्टिवेट माई अकाउंट। तो जो उस गुफ्तगू के दौरान जो मामला होगा वो मेरा हो जाएगा फंक्शनल। जैसे इसमें आपने देखा होगा मेकिंग अपॉलॉजीज और मेकिंग रिक्वेस्ट, वो एक सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसके अंदर आपके पास फंक्शन आएगा। फिर ये ग्रामेटिकल सिलेबस है आपके पास, ये आपको पता होगा, इट इज़ वेरी कॉमन। ग्रामेटिकल सिलेबस क्या कह रहे हैं? ग्रामेटिकल, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू एनी ऑफ दीज चॉइसेस। A grammatical syllabus restricts the kind of tasks and situation which the students can work with. In a functional syllabus, it may be difficult to work out a grammar sequence when there are so many different ways of performing the same function. वो जो function है उसको, it can be difficult to sequence language if we base our syllabus on situation or task. So what most planners and coursework writers try to provide is a kind of multi-syllabus सिलेबस। तो ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे या जो ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं वो मल्टी सिलेबस होता है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा जो है तरह के सिलेबस आपको मिलेंगे। उसमें ग्रामर का भी आपको पोर्शन मिल जाएगा, ग्रामर भी मिल जाएगा, फंक्शनल में मिल जाएगा, सिचुएशनल में मिल जाएगा, एंड देयर आर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स which includes not only the categories discussed above such as grammar and vocabulary but also issues of language skills। ये देखिए नीचे आपके पास आ गया फिगर ऑफ पेज 214, ये आपके पास देखिएगा। ये 214। अब ये देखें आपके पास ये एक सिलेबस एक किताब का है, ठीक है। कंटेंट ऑफ यूनिट 1, नाइस टू मीट यू। ग्रामर फोकस ये आपके पास फंक्शनल आपके पास चीज़ है। ग्रामर फोकस ये रहा, वोकैबुलरी ये रहा, स्किल उसमें कुछ नहीं है।
प्रोनाउंसिएशन, शॉर्ट फॉर्म्स, इज एम आर जो ये बताया जा रहा है। टास्क उसमें ये आस्क फॉर एंड गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन लिसनिंग, टास्क स्पीकिंग, लैंग्वेज जो है उसमें सेइंग हेलो एंड गुड बाय, राइटिंग में क्या है राइट अबाउट योरसेल्फ इन सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। इस तरह से आपके पास स्टडी प्रैक्टिस, रिमेंबर जो चीज़ें करनी वो क्या है इसमें, स्टडी प्रैक्टिस 1 पेज 98। तो ये आपने बताया उनको कि ये आपने इस चीज़ को स्टडी करना है, रिमेंबर दीज वर्ड्स, इन अल्फाजों को आपने याद करना है। इस तरह से एक और आपके पास है यूनिट, आपके पास क्या है यूनिट 2 है और इट्स अबाउट अराउंड द वर्ल्ड। ये समझ लें एक आर्टिकल है या कोई भी एक पैसेज है, नेम ऑफ द पैसेज इज अराउंड द वर्ल्ड, पेज 14 ना आपने बता दिया। उसमें ग्रामर फोकस आपके पास क्या है, बी विद आई यू विद दिस प्रोनाउंस। फिर वोकेबलरी उसमें क्या फोकस करेंगे, कंट्रीज, नेशनैलिटीज़ एंड नंबर्स, ये आपने फोकस करना है। स्किल्स के कॉलम में आपने कुछ नहीं लिखा। प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या होगा, वर्ड स्ट्रेस पे आपने फोकस करना है। टास्क क्या है, डू अ क्विज, प्रिपरेशन, लिसनिंग एंड रीडिंग। लैंग्वेज लाइव जो है वो कुछ नहीं है, जबकि स्टडी प्रैक्टिस में आपने बताना है कि ये वाले पेज पर आपके पास स्टडी और प्रैक्टिस है, मज़ीद आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एक चार्ट बना के दिया है जो कि अमूमन आपको किताबों में मिल जाएंगी, लैंग्वेज की बुक्स में या आम सी किताबों में। अभी आपको इंग्लिश की जो बुक्स हैं यू कैन फाइंड दिस इज हाउ द सिलेबस इज प्रिपेयर्ड, यू डिज़ाइन योर लेसन्स एंड सिलेबस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आपको मैं एक आर्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं आपको आई विल गिव यू एन आर्टिकल, मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि विच लैंग्वेज आइटम्स डू यू प्रिपेयर कीपिंग इन माइंड दिस आर्टिकल। तो आपने क्या करना है, ग्रामर का पोर्शन लेना होगा, वोकेबलरी का बताना होगा क्या है। ग्रामर में आपने यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लाइक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और फ्यूचर। फिर प्रोनाउंसिएशन में आप बताएंगे कि मैं क्या चाहती हूँ कि स्टूडेंट से किस चीज़, कौन सा एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। टास्क में क्या हो सकता है, किस तरह की चीज़ हो सकती है। सो यू कैन से दैट इट्स लिसनिंग एंड रीडिंग एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर स्पीकिंग पर्पज एज वेल। और फिर एक आध आप उसकी एक्टिविटी बना के कह सकती हैं कि इन दी एंड स्टूडेंट कैन ऑल्सो स्टडी और प्रैक्टिस। This is how you can do what you can, these are contents, and this is how you can design your syllabus or design your you know uh, multi syllabus type of syllabus। ये एक कोर्स बुक का जो एग्जर्प्ट है और ये आपको इस किताब में मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? देन वी हैव, किसी को सवाल उस हवाले से कुछ करना हो तो मुझसे कर सकता है। ये सब मैं आपको दे चुका हूँ, अब आप लोग ले लें, उसे ख़रीद लें, अपने पास रख लें और उसको फिर पढ़ें। मैंने सोचा था कि आज आप लोग ले लेंगे, बट यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द यूनिवर्सिटी। एनी हाउ यू हैव PDF फाइल विद यू एज वेल, आपके पास PDF की फाइल भी है, सो यू कैन ऑल्सो सी। Does anybody have any question? No response is coming, zero response. No, sir. कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो आपको। Now designing lessons, so you can see here teachers often have an idea of what they would like the lessons they are going to teach to be like or to feel like. Sometimes this is expressed in metaphorical terms and people talk about lessons as a symphony, a TV program, a story or film. Thornbury 1999 इनकी research थी। Climbing a mountain, a football game, a conversation, consulting a doctor. These are different types of lesson
lessons, or these are different types of activities that. Now here you can see what is being said. There is a difference between a formal written lesson plan and thinking that goes into it. एक तो होता है जो हम फॉर्मली बना रहे होते हैं, बनाते हैं, और एक होता है जो हमारे जहन में चल रहा होता है. So a kind of pre-planning stage where ideas about what we might do come to us. So many teachers you will find that they do not make written plan क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, तो वो थोड़ा सा गफलत का मजारा भी कर बैठते हैं. So they just keep in mind that I will do this and that thing today. उस वजह से वो बहुत सारी गलतियाँ भी कर जाते हैं because it is not possible to keep each and everything in mind. For this purpose we must have a diary with us, we must have a planner with us. There are a number of issues that may go into such quiet pondering. जैसे lesson shape and feel. Teachers often have an idea of what they would like the lessons they are going to teach or feel like. उनको कैसा महसूस होता है. Sometimes this is expressed in metaphorical terms जो भी आपको मैंने बताया. Lesson stages. Lesson की कुछ stages होते हैं. Many pre-planners think in terms of lesson stages. Pre-planners कहते हैं जो plan अभी कर रहे होते हैं. How to move between them. कि आपने एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर कैसे मूव करना है. Should they use a warmer or an icebreaker to start a lesson? Can anyone tell me अगर स्टूडेंट्स आपके बोर हो रहे हैं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? लैंग्वेज क्लास में अगर स्टूडेंट्स आपके बोर हो रहे हैं तो आप उस सूरत में क्या करेंगे? We give some type of activity. What kind of activity? Means which related to study as well as students maybe relaxed and fresh their mind. Different teachers here, have different strategies. Some teachers, tell student jokes. उस दिन एक मैं पढ़ा था टीचर का कि वो भाई क्लास में गाना शुरू कर देता था. इस तरह से कुछ जो है वो एनर्जाइजर्स होते हैं, कुछ उनका यूज करते हैं. There are different ways to yes please. Sir, when I was taking English language classes on that time, the sir kept on giving us like activity कि आपने speaking, you keep on speaking when the word end with noun, then the other person will have to start from the noun and to end it. So that was the activity. जो लफ्ज मैंने खत्म किया, जैसा कि लफ्ज मैंने वर्ड पे खत्म किया तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट होगा वर्ड पे ही बोलेगा. फिर जो एंड वाला जिसका लफ्ज होगा, फिर जैसा कि एंड वाला लफ्ज कोई कंट्री आ गया, फिर वो कंट्री पे बोलना शुरू करेगा. सर ये एक्टिविटी पे हमने बहुत एंजॉय किया. मतलब वो गेम टाइप की एक्टिविटी होती है ना. टीचर्स गिव स्टूडेंट्स सर्टेन गेम्स एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट्स व्हाट दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट अगेन. लर्निंग भी आती है, इंटरेस्ट भी आता है. मिसाल के पे एक गेम एक्टिविटी है जो मैंने स्टूडेंट्स को अपने क्लास में करवाई थी कि मैंने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया. मैंने उनसे कहा कि लेट्स सी हाउ शार्प माइंडेड यू आर एंड हाउ यू गिव गुड आंसर, क्विक आंसर. तो उनसे ये कहा था कि दिस इज अ प्रैक्टिस गेम which is the purpose of this game is to improve your confirmative questions and answers. अब मिसाल के तौर पे आपने सवाल करना है और आपको जवाब दिया जाएगा. आपके पास कितने में 2 मिनट है या 1 मिनट है, आपने अपने अपोनेंट को फंसाना है. ठीक है, अगर वो ट्रैप हो गया ठीक है, नहीं तो आप वो मार्क्स 2 नंबर उसके हो जाएंगे. और फिर वो आपके साथ यही करेगा, और अगर उसने आपको ट्रैप कर लिया तो वो 2 नंबर हासिल कर लेगा, अदरवाइज आप हासिल कर लेंगे. तो क्या किया कि 1 मिनट या 2 मिनट जो भी उनको दिया और उनसे कहा कि अब आप बोलें. तो उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया. सवाल कौन सा था? यस नो क्वेश्चन. जवाब उसका देना होगा बगैर यस और नो के. मिसाल के पे मैंने अगर आपसे कहा डू यू प्ले क्रिकेट, आपने कहा आई डू, और जवाब भी आपने सही देना होगा. 2-3 गलती आप करेंगे तो वो आप लूज कर जाएंगे. तो इस तरह से सवाल पूछा गया है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश. अचानक उनके मुंह से निकला यस, लूज कर गया. ठीक है, इस तरह से वो सवाल पूछने वाला जो था वो 2 नंबर ले गया. अब उसका सवाल पूछने का आर्ट भी है कि उसे सवाल तेजी से पूछना होगा और
तो उसे वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा कि मैं तेज पूछूं, हल्का पूछूं, कैसे पूछूं ताकि ये बंदा थोड़ा सा इसका डिस्ट्रैक्ट हो, तवज्जो हटे और वो यस और नो कह दे. Are you getting me? So in this way they are doing what they are showing their presence of mind. Number one, their skills of asking question. Number two, number three, their answering skills of answering question. ये तीन चीजें इस एक्टिविटी के जरिए इंप्रूव हो रही है और खेल का खेल हो रहा है. दिस इज हाउ दे आर ऑल्सो taking interest. So sometimes it happens that we have to give them such activities which, give them excitement and they enjoy. Have you understood what I was saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, no game activity. So there are many such activities. इस तरह से बहुत सारी और भी activities है which you can find. Okay. So lesson stages. Then grouping students for different activities. Students को different activities के तौर पर group बनाया. When we start visualizing future lessons, so we often begin by making a kind of mental inventory of the kind of activities we want to include. So हम थोड़ा सा imagine करते हैं. We think it might be a good idea for the student to be working in pairs. So हम बाज़ औक़ात student के pair बना देते हैं. Sometimes we make their groups. Sometimes we make sometimes we call them one individually. So these are different ways grouping students for different activities. कहीं हमें 4 का ग्रुप बनाना पड़ता है, कहीं हमें 6 का बनाना पड़ता है, कहीं हमें 3 का बनाना पड़ता है. These are different different activities. These depend on different activities. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि our fluency activity, the students reach a consensus about 5 objects they would take into space. तो वो ये आपके पास आएगा. Students read about a space station. Student devise an ending for the story. आप उनसे predicting the content based on the title, reading to confirm, reading again for detail. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास होंगी. आप स्टूडेंट्स को इमीडिएट क्रिएटिविटी पे भी ले जा सकते हैं. लैंग्वेज स्टडी मतलब यूजिंग द स्पेस स्टेशन सिचुएशन टू मेक सेंटेंसेस अबाउट व्हाट पीपल शुड और व्हाट शुड हैव डन. आप स्टूडेंट्स से कह सकते हैं कि आप ये जुमले लिखो, जुमले बनाओ, ये इस पर कुछ लिख के दे दो. इंटरव्यू रोल प्ले इंटरव्यूज टू सी इफ दे विल बी चूजन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ स्पेस. You can give them role plays, you can give them interviews. For example, आप उनको इंटरव्यू तो किसी भी चीज़ का किसी का भी हो सकता है. आप उनसे कहें कि for example you are a student and you want to get enrolled in this university or at this university, so your interview will be conducted. आपने उसको 2 स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी दे दी. इसी तरह से आपने उनको रोल प्ले दे दिया कि you are a shopkeeper and he is a customer. So there are many things. Interview Kathy years later to find out what happened to her. Write a new flash program based on what happened. Watch a short extract from a video. कोई एक छोटी सी वीडियो दिखा दी स्टूडेंट्स को, उसके बाद स्टूडेंट से पूछा कि बताओ कि इसका बताओ इसकी समरी लिख दो इस वीडियो की. या आपने एक वीडियो दिखाई और उसका बीच से आपने उसको कट कर दिया और फिर स्टूडेंट से कहा नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द एंड ऑफ दिस स्टोरी. या आपने जुमला एक लिख दिया बोर्ड पर, एक जुमला लिख दिया और उस जुमले के बाद आपने कहा कि अब इसको आपने इस पर कहानी बनानी है. मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि लास्ट वीक आई वॉज कमिंग टू माई होम ऑन द वे. ये बस मैंने दे दिया इनकम्प्लीट क्लू. अब इस पर आपने पूरी एक स्टोरी लिखनी है. दिस इज अगेन एन एक्टिविटी. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर एक्टिविटीज. देन मेकिंग अ फॉर्म. इज दिस क्लियर? Yes. What's not coming? Yes, sir. Okay, It's let me take your attendance picture of your participant list. Don't say anything.
Yes. So making a formal plan, and this is what we have. There is one more lecture related to it that will be recorded, and then I will send it to you. If you have any question regarding this, you can ask me. और जब भी आपके पास हैंड आउट आ जाए तो इसको आप काइंडली पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा. यस. Excuse me, sir. यस. Our next class will be physical now. फिजिकल? नो फिजिकल माय डियर. सर आपने लास्ट टाइम बोला हर मंथ में हम एक फिजिकल क्लास की. लास्ट टाइम बोला था, लेकिन मुझे सख्ती से मना कर दिया गया है. अभी लास्ट टाइम गया था डिपार्टमेंट में, परसों ही गया था मेरे ख्याल से, तो दे टोल्ड मी सर जो हो रही है उस पर भी हमें कहा जा रहा है कि इसको भी आप 50% पे लेकर आएँ. और फ्रॉम 6 ऑफ दिस मंथ, यानी कि 6 तारीख से सिंध में भी सख्तियाँ शुरू हो रही हैं. ऑल द मैरिज हॉल्स आर बीइंग क्लोज्ड, एंड वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, और ये बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. रात 8 बजे मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएंगी. सिंध में भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है. तो स्कूल्स कॉलेजेस में तो पहले ही से था कि 50% स्टूडेंट्स आप बुला सकते हैं और 50% को पढ़ाना घर से, और इससे मज़ीद सख्ती कर रहे हैं. तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया. ये हवाले से सर वी आर वेरी सॉरी. इज दिस क्लियर? Next class में sir, and on your next class sir, you are going to tell about midterm. या आई विल टेल यू अबाउट मिड टर्म इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. मिड टर्म का ही बता दूंगा, असाइनमेंट भी डिस्क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह. Okay, sir. Okay, I will tell you about the assignment as well. तो इसीलिए पूछूं, if you have any problem you can ask me, because these things you will be asked in the assignment. आपको इन्हीं से मुतालिक चीज़ें बतानी होंगी assignments के अंदर. I may give you different things about lesson planning or about teaching. अभी तो इंशाल्लाह जब और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आगे आएंगी, इसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करा था जो हो चुका है. आगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लासेस यू विल हैव इंशाल्लाह. That's all. So there'll be one more session that I will record, and then I'll send it to you inshallah within a day or two. So with this I end the session. Thank you very much. Allah Hafiz. Okay, sir. Thank you.